So, good evening, friends. Today, in this video, I would like to discuss upon a new chapter called inflations, which is the mother of all the chapters in economics. So, what is inflations? Inflation, when we say when there is an increase in persistent increase in prices of a commodity over a period of time, is called as inflations. जब किसी समय अवधि के दौरान वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हो जाए तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन हो गया. तो इन्फ्लेशन इज when there is increase, the persistent increase in prices of a commodity is called as inflations. And what are the types of inflation? There are two types of inflations. First is demand pull factor and second is cost push factor. Demand pull factor, mainly demand which demand in demand pull factor we discuss what are the reasons due to which the demand of the product increases. Why the demand of the product increases? These are called demand pull factor, which are increasing demand mainly. So the first first point, we can say that population. When there is increase in population, demand of the product will increase. अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. सेकेंड, व्हेन पीपल हैव देयर इनकम लेवल इंक्रीजेज, व्हेन द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज, देन ऑल्सो द डिमांड फैक्टर इंक्रीजेज. जब लोगों की इनकम बढ़ती है, जब लोगों की आय बढ़ती है, तब भी उनका जो डिमांड है वो बढ़ता है. थर्ड, there are a number of things like taste, expectations, culture, gender ratio, and expectations, speculations, due to which the demand of the product increases. कई बार लोग स्पेकुलेशन करते हैं, कई बार लोगों को कोई टेस्ट पसंद आ जाता है किसी चीज़ का, तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं. और ये होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इंक्रीजिंग डिमांड. Other than that, we can also say black money generation in economy that can also increase demand of the product. Black money generation of a product can also increase demand of the product. So these are some factors due to which the demand of the product increases. और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ज़्यादा कस्टमर्स प्रोडक्ट के पीछे भागेंगे, फॉलो करेंगे, और प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है. So this type of inflation is called as demand pull inflations. Why? Because the demand is higher and the supply is lesser. When the supply is not matching the demand, then there will be inflation in a product. इसी कारण से डिमांड पुल फैक्टर के कारण इन्फ्लेशन होता है. डिमांड पुल फैक्टर इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई by following its monetary policies. Under monetary policy, RBI has two types of tools, quantitative and qualitative tools. In quantitative tools, RBI can control inflation by increasing CRR, repo rate, bank rate. These are four terms. Uh, by applying these four terms, by increasing these four terms, RBI can control our inflations in a long term or short term. Second factor is of fiscal policy. Second type of inflation is cost push inflation. Under cost push inflations, the cost of a product increases when the input products prices increases. जब price input product के बढ़ जाएंगे, when the prices of input product increases, then the cost of the product increases. Like for example, कोई भी product बनता है, for let's say चेयर है. चेयर अगर बनी है तो उसमें आयरन यूज़ हुआ होगा, उसमें हो सकता है लकड़ी यूज़ हुई हो. अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसको बनाने में जो लेबर यूज़ हुई है, अगर लेबर को वेजेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, देन अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. दैट इज़ वाई द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. अदर देन दैट वी कैन ऑल्सो से बाय इंक्रीजिंग इन टैक्स रेट, बाय इंक्रीजिंग इन इनडायरेक्ट टैक्स रेट, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है. बाय इंक्रीजिंग इन इनडायरेक्ट टैक्स रेट, द प्राइसेज ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस. अदर देन दैट वी कैन से द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इसीलिए भी इंक्रीज कर जाता है व्हेन सप्लाई इज लेसर. व्हेन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर, देन द जब प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी तब भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. एंड सीजन, कुछ प्रोडक्ट हमारे सीजन पर बेस होते हैं, सीजनल होते हैं. जब उनका सीज़न नहीं होता है तो वो प्रोडक्ट महंगे होते हैं, और जब उनका सीज़न होता है तो वो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट फैक्टर, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट किस तरीके से बढ़ती है. तो दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशंस, द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशंस. थर्ड इज ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशंस.
Third type of inflation is called as structural inflations, though it is sometimes not mentioned in the syllabus, but we read structural inflations under cost push inflation also. Structural inflations under structural inflations, transport charges, monsoon failure, natural calamities, the stock of a product, cartelizations of the product, that increases structural inflations. Why? Because this type of inflation is mainly due to the problem in our structures. अगर लोग ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो कमोडिटी की मार्केट के अंदर कमी हो जाएगी और उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे. Other than that, we can say in structural inflations, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर बढ़ते हैं, किसी कमोडिटी को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है, पेट्रोलियम लगता है, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी. तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बढ़ने से भी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाता है. अदर देन दैट वी कैन से अगर मानसून फेलियर हुआ है, मानसून फेल हो गया है, रेनफॉल अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा, तो उस प्रोडक्ट की कमी हो जाती है मार्केट में. एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज इन डेफिशिएंसी, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है. So these are structural inflations. Under structural inflations, we can say that structural inflation and the cost inflations, cost push inflations, both can be controlled by government by applying its fiscal policy methods. Under fiscal policy reforms, government can increase or decrease taxes, government can increase subsidies, government can increase welfare measures. Like for example, government has introduced direct benefit transfer schemes. Government has also introduced the Narega schemes. So both these schemes, other than that, we can say Jandhan schemes. All these schemes are meant for the welfare of a larger public, which is a downtrodden sections, which in fact do not have larger paying capacity. So that is structural inflation. Structural inflation and cost push inflations both can be controlled by government under its fiscal policy reforms. So this was a type of inflations. So let me discuss how we can control this inflation. This inflations can be controlled first by monetary policies. First major responsibility to control inflation is of RBI. RBI under its monetary policies can check the repo rate, bank rate, CRR and SLR. By increasing these terminology, by increasing these terms, by increase in bank rate, by increase in CRR, SLR or repo rate, RBI can suck or RBI can absorb the excess amount of liquidity from the market so that it can decrease the flow of money in the market finally, which will be decreasing demand, and with the decrease in demand, the demand will be under control and the supply will be matching at the equilibrium level so that inflations can be controlled. Second is a fiscal policy reforms. Under fiscal policy reforms, government can control inflations by applying some fiscal measures under which government can increase or decrease the tax rates. If the liquidity is higher in the market, then government can decrease the liquidity by increasing by by decreasing tax rate. If government decrease tax rates, then the cost of the product will be decreasing, and if the cost of the product gets decreased, then definitely the inflation will come down, inflation will decrease. So this is a fiscal reform under which government can also take some other measures, like बैन कर सकते हैं हम स्टॉक पर, स्टॉक जो कमोडिटी का कर रहे हैं उसको बैन कर सकते हैं, कार्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम बैन कर सकते हैं, और मानसून अगर फेलियर हो रहा है तो we can do some sort of good things in agriculture. We can take some steps in agriculture field. We can provide किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन सस्ती दरों पर उनको दे सकते हैं हम, या फिर इरिगेशन फैसिलिटी उनको अच्छी कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हमारा अच्छा नहीं है तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं. नेचुरल कैलेमिटी हो रही है तो उसको हम टू एन एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं कुछ लिमिट तक. उसके आफ्टर मैथ्स जो होते हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में. So these are some methods by applying which you can control inflations.
सो लेट मी डिस्कस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन होता है तो क्या होगा, डिफरेंट सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेंगे। अगर इन्फ्लेशन होता है तो फर्स्ट थिंग कि इन्फ्लेशन के होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भुगतान शेष, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लेन और देन जो हमारा कंट्री करता है बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से, उसका अगर हम एक रिकॉर्ड ले लेते हैं, रिकॉर्ड ऑफ दिस डेटा इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो जाता है अगर इन्फ्लेशन होगा हमारी इकोनॉमी में। अगर इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होगा। सेकेंड इज व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, unemployment rate will decrease. With the increase in inflation in smaller terms or in a smaller period of time, the inflations will be decreasing unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो होती है इन्फ्लेशन के होने से कम हो जाती है। थर्ड, रुपी की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाती है इन्फ्लेशन के होने से, रुपी डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू गिर जाती है। फोर्थ थिंग वी कैन से, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है इन्फ्लेशन के होने से। आरबीआई के राहत कोष में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व में है उसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ थिंग वी कैन से, विद द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इनफैक्ट डाउन ट्रोडन पीपल जो हैं, जो लोअर इनकम पीपल होते हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और रिच क्लास पर इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता इन अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। कम समय अवधि के अंदर अगर हम देखें तो रिच क्लास को इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन के होने से, और लोअर इनकम पीपल जो होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन्फ्लेशन का क्रेडिटर और डेप्टर पर क्या असर पड़ता है। क्रेडिटर होता है देने वाला और डेप्टर होता है उधार लेने वाला। क्रेडिटर जो होता है देने वाला, उधार जो देता है उसको इससे लॉस होता है इन्फ्लेशन से, और डॉक्टर को इससे बेनिफिट होता है। टैक्सेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो टैक्सेस इसमें ज़्यादा देने पड़ते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दोनों ही इस केस में ज़्यादा देने रहेंगे इन्फ्लेशन के होने से। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर अगर स्मॉलर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसे प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर्स का बढ़ता है, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट एक्सपांड करेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले टाइम के लिए, तो इन्वेस्टमेंट इससे इंक्रीज होगा। सेविंग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव रिलेशन होता है इन्फ्लेशन का सेविंग के साथ। सेविंग विल डिक्रीज इफ देर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सेविंग जो होती है लोगों की वो कम हो जाएगी। वेजेस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो लेबर क्लास है जिसको वेजेस प्राप्त होते हैं डेली बेसिस पर, उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो लोग 200 रुपीज़, लेट्स सपोज 400 रुपीज़ इनकम अर्न कर रहे थे डेली बेसिस पर, तो उनकी इनकम वो कम रहेगी उनके पास, क्योंकि इन्फ्लेशन के होने से उनके कंजप्शन आर्टिकल जो हैं उनका उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो उनके पास अल्टीमेटली इनकम कम रहेगी। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिलेशंस विद इन्फ्लेशन एंड वेजेस रेट। So these are some terms which will be affecting on अदर सेक्टर्स लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है इन्फ्लेशन के होने से, बट उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, निर्यात जो हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है एक्सपोर्ट का। और इंपोर्ट की केसेस की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट जो हमारे नेसेसरी इंपोर्ट होते हैं उनके लिए हमें ज़्यादा पे आउट करना रहता है, बिकॉज इंपोर्ट्स आर नॉट अफेक्टेड टू द लार्ज एक्सटेंट। तो ये था हमारा डिफरेंट फैक्टर्स पर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। करीब 8 से 10 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहता है। अदर देन दैट वी कैन सी इन्फ्लेशन इज चेक्ड बाय 2 मेजर्स। इन्फ्लेशन को किस तरीके से हम चेक करते हैं, WPI से या फिर CPI से। WPI is a wholesale price index and CPI is a consumer price index. Under WPI we have 676 commodities, and under CPI we have different commodities of different sets of commodities, like 260 commodities we take under CPI industrial worker, under CPI agriculture, and under CPI rural and urban. There is different commodities
Different set of commodities are being taken for different sectors under CPI, Consumer Price Index, and under Wholesale Price Index, we have taken 676 commodities, which has increased recently to 697. 697 commodities इसमें हो गई हैं. So base rate इसके लिए क्या होता है? Once we check the inflations, we are taking a base rate. Base rate is, our base rate was 2011 to 12, but now it under one committee, the reform was taken and it was changed to 2017 or 18. To check inflations, we are taking base years of 2017 to 18. So this was a latest update under inflations. So under WPI is checked. WPI इन्फ्लेशन जो होता है, जो चेक करते हैं, वो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स इंडस्ट्री हम उसको बोल सकते हैं. कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चेक द WPI इन्फ्लेशंस. और ये कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री जो होती है स्टैटिस्टिकल डेटा से रिलेटेड, तो वो WPI के आंकड़े जारी करता है. अंडर CPI, दैट इज लेबर इंडस्ट्री, लेबर ब्यूरो वी कैन से. लेबर ब्यूरो का काम होता है CPI जो इन्फ्लेशन है उसको चेक करना, उसकी रिपोर्ट जारी करना लेबर इंडस्ट्री का काम होता है. और वी कैन ऑल्सो से CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी जो CPI है इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको देखता है. So under WPI, up to the period of 2nd April 2014, we have been utilizing WPI as a inflation check. इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए हम WPI का यूज़ करते थे, बट फ्रॉम 2014 वी हैव स्टार्टेड यूजिंग CPI to check inflations. So under CPI, what we does under CPI, under CPI, in fact, we have changed some terminologies. Under WPI, when we check inflation under WPI, there are three types of commodities. First is primary articles, that is called food products. Second is manufactured products, and third is third type of products is petroleum products, energy products we can say. These are three types of commodities which are considered to check inflations under WPI. सो इन दी तीन तरह की जो कमोडिटीज़ है, इनमें सबसे ज़्यादा वेट WPI के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे था. और फूड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसका वेटेज था 23.4%, जो कि CPI के अंदर फूड प्रोडक्ट्स का वेटेज जो है 23.4% से बढ़ा करके 45.2% कर दिया है. मतलब फूड प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है वो CPI में ज़्यादा है WPI के मुकाबले. सेकेंड थिंग, WPI के अंदर सर्विसेज सेक्टर मिसिंग था. एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं किए गए थे, और हालांकि किसी भी तरह की सर्विसेज WPI में इंक्लूड नहीं की गई थी, जो कि CPI के अंदर मेंशन की गई हैं. एजुकेशन और हेल्थ जो है WPI के अंदर जो मिसिंग था वो CPI के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है. तो क्योंकि हमारा जो जिस तरह से हमारे एक्सपेंडिचर्स होती हैं, तो कुछ एक्सपेंडिचर्स का पार्ट एजुकेशन पर होता है, कुछ हेल्थ पर होता है, और कुछ फूड आइटम्स पर होता है. बट इन आवर इकोनॉमी वी हैव सीन दैट मोर देन 70 to 80% पीपल जो हैं वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं. और लोअर क्लास में क्या होता है, उनका जो कंजप्शन होता है, मेजर कंजप्शन उनका 40% अराउंड फूड आइटम्स पर होता है, और 20% के आसपास हम कह सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर होता है. तो ये जो 60% उनका जो कंजप्शन है वो CPI में जो हम मेजर्स लेते हैं, CPI में इनके आइटम्स ज़्यादा होती हैं. फूड आइटम्स का वेटेज जैसे मैंने बताया 45.2% है, और एनर्जी प्रोडक्ट्स का या एजुकेशन और सर्विसेज का देखें तो अराउंड 20% वेटेज CPI में है, WPI में जो कि बिल्कुल भी नहीं था. तो CPI को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि CPI हमें इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए अच्छा मापदंड है, सही मापदंड देगा, सही इसका हमें आंकड़ा अवेलेबल करवाएगा. तो दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड यूजिंग CPI. सो these were some things, and sometimes the question is asked, what is Phillips curve? Phillips curve in fact tells us about the relations between unemployment and inflations. Inflations, with the increase in inflations, unemployment level rate falls. अनएम्प्लॉयमेंट उससे कम होता है. जब महंगाई होगी तो बेरोजगारी कम होती है. अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होने लगे,
हाइपर इन्फ्लेशन होने लगे, उस केस में जो होगा इसका अपोजिट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगेगा। सो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा एक कन्वेक्स शेप में, इसका जो है ग्राफ बनता है कन्वेक्स शेप में, कन्वेक्स जो कि नीचे की तरफ इंक्लाइंड रहता है। मतलब इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा तो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। और ऑलवेज रिमेंबर, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट जरूर रहेगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, या एक जॉब से दूसरी जॉब में जब वो स्विच करते हैं तब अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ही हमेशा रहेगा किसी भी तरह की इकोनॉमी में। So now I would like to talk upon different sectors of inflations, different terminologies which are in fact very much related to inflations. Opposite of inflation is called as deflations, and there is one another term called as disinflations. Disinflation होता है रुक रुक के महंगाई होना। डिसइन्फ्लेशन को हम कहते हैं अपस्फीति कारक, डिफ्लेशन को हम कहते हैं अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन को हम कहेंगे अपस्फीति कारक। ये डिसइन्फ्लेशन तब होता है जब रुक रुक के महंगाई होती है। एंड फोर्थ टर्म इज स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन हम कहते हैं तिरछा महंगाई हुआ। तिरछा महंगाई का मतलब है, लेट्स सपोज WPI में होलसेल में जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके प्राइस 15 रुपीज़ kg हैं, और अगर हम CPI में अगर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कंज्यूमर प्राइस पर खरीदते हैं, अगर रिटेल में खरीदें तब उसके प्राइस लेट्स सपोज 25 या 30 रुपीज़ के बीच में है। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हुआ, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्क्यूड इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो है तिरछा महंगाई है इसमें। सो इसके साथ हम कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ही साथ साथ हों, तो हम उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन है। मतलब सतगन जन्य मुद्रास्फीति है, जब दोनों ही साथ साथ हों, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर इंक्रीजिंग, जब दोनों ही बढ़ने लगे तब हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है, जो कि 1985 में USA के अंदर देखी गई थी, 1985 में। सो वन अनदर टर्म इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन हम तब कहते हैं जब मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो होते हैं, मैंने बताया आपको WPI के अंदर हम 3 तरह के प्रोडक्ट लेते थे, या CPI के अंदर भी हम 3 तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं मेनली, जो कि प्राइमरी गुड्स होते हैं, सेकंड इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, और थर्ड जो होता है हमारा सर्विस सेक्टर हम कह सकते हैं। पर सर्विस सेक्टर WPI में मिसिंग था, तो उस टाइम पर हम उनको एनर्जी प्रोडक्ट्स का नाम देते थे। तो एनर्जी प्रोडक्ट्स, अगर ये महंगाई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में है तब हम कहते हैं कोर में महंगाई है, कोर इन्फ्लेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं मर्म मुद्रास्फीति, मर्म मुद्रास्फीति। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब महंगाई का रेट बहुत ज़्यादा हो, जैसे जर्मनी में हुआ था। जैसे जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा गया था कि महंगाई का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, हज़ारों की गुना में हो गया था। तो इसलिए हम कहते हैं उसको हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन 3, 4 या 5 डिजिट्स में चल रहा हो। लो इन्फ्लेशन तब हम कहते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो, जब महंगाई धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही होती है, उसे हम कहते हैं लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई महंगाई हम इसे बोलते हैं। सेकेंड टर्म इज गैलोपिंग। गैलोपिंग इन्फ्लेशन तब होता है जब महंगाई का डिजिट डबल डिजिट में होता है। फॉर एग्जाम्पल इन 2010 कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखा गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन अराउंड 20% था। कुछ एक प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में भी हमने देखा 20% के आसपास जो था इन्फ्लेशन था, जिसको हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशंस। सो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं रिफ्लेशन क्या होता है। रिफ्लेशन होता है महंगाई का दोबारा से बढ़ना। महंगाई दोबारा से कब बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है, जब गवर्नमेंट प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करना चाहती है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहती है, तब गवर्नमेंट क्या करती है? अंडर फिजिकल रिफॉर्म्स, फिजिकल मेजर्स के अंदर में गवर्नमेंट प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देती है, टैक्सेस वगैरह इंक्रीज करके, सब्सिडीज वगैरह कम कर देती है उस केस में। तो ये था हमारा रिफ्लेशंस। तो इसके अलावा भी 2 टर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं रिसेशन एंड डिप्रेशन। रिसेशन हमारा होता है मंदी का दौर, जब सक्सेसिवली 6 मंथ्स तक नेगेटिव ग्रोथ रेट हो, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो तो हम उसे कहेंगे रिसेशन की सिचुएशन आ गई है। अगर रिसेशन 6 मंथ्स तक कंटिन्यू चले तो हम उसे कहते हैं डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई है, इकोनॉमी में महामंदी आ गई है। महामंदी के टाइम पर इन्फ्लेशन या तो बहुत ज़्यादा होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा।
तो उसमें क्या होता है कि डिप्रेशन हो जाता है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती है प्रोडक्ट की, इसीलिए डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है. So these were some terms, terminologies which we have discussed under inflations. In the next chapter, we'll be discussing about in the next topic हम discuss करेंगे इसके बाद. So thank you.